Good morning, student. Today we will discuss the next topic of fourth unit. As you know that we are the part of SIRTE Excellence, Sagar Institute of Research and Technology Excellence, and we are also belonging to the SAGE group. Now, next topic is the testing technique. As we have seen in previous lectures, there's the level of testing is 4 level of testing. Unit testing means code testing. We will test the each and every code of function and module. After that we will integrate them. We'll do the design or integration testing. After that we will validate it is the software is prepared for the requirement of a customer or not. That is validation testing. And after that we will do the system testing, the hardware, software, humanware and database combination coordinating or not. Now after that, first we will see the unit code testing. Unit code testing, what are the techniques of unit code testing? There are two techniques, white box and black box testing. In white box testing, we will see the logical paths and each and every internal part, we can say each operations of the unit code और coding. जो modules में code होते हैं उनको एक एक इंस्ट्रक्शन को टेस्ट किया जाता है. दैट इज यूनिट वाइट बॉक्स टेस्टिंग. एंड इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग we will see the fully operational function is working properly or not, is calling or not, missing either, या एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. मीन्स फंक्शंस को ऊपर से जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो ब्लैक बॉक्स, और उसको अंदर से पूरा अंदर से कोडिंग टेस्ट कर रहे हैं. इट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग. द फर्स्ट वी विल सी द वाइट बॉक्स टेस्टिंग. White box testing means internal structure, design, implementation of each part. Testing is known as white box testing. In white box testing, the first testing will be done is the basic part testing. In this test case exercise, the basic set are guaranteed to execute every statement in program at least one time during the testing. कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करना है. That is basic part testing. आफ्टर दैट द सेकेंड मेथड इज फ्लो ग्राफ टेस्टिंग. हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट या कोड के थ्रू फ्लो ग्राफ बनाते हैं इस तरह से. एंड उसमें हम ये चेक करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ बने हुए हैं जो सिर्फ अपने आप में चल रहे हैं. जैसे यहाँ पे 0, 1 एंड 11 इज वन पाथ, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 एंड 1, 11 is two path. Like this, the what is flow graph? Flow graph, circle of a graph represent the node which stand for the sequence one or more procedural statement. ये जितने भी nodes हैं सर्कल में बने हुए हैं जो सीक्वेंस कोई इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं. इफ यही कंडीशनल स्टेटमेंट बताना चाहते हैं, दैट इज प्रेडिकेट नोड हैविंग टू एजेस. ये जो दिख रहा है यहाँ पे जिस तरह से दिस इज डायमंड, तो वी विल राइट हियर विद फ्लो ग्राफ इज टू एजेस circle which shows the condition or known as the predicate nodes. After that edge, जो edges हैं इसमें जो इनके links बता रही हैं या flow बता रही हैं. And after that the area bounded by the edges, area bounded by and counting, when counting region बाउंडेड बाद एजेस जो होते हैं और नोड्स होते हैं उनको कहते हैं रीजन. और जो काउंटिंग के बाद बाहर का एरिया भी एक रीजन कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह से काउंटिंग हुआ है, एक रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन एंड चौथा रीजन आउटसाइड. नाउ वी हैव सीन फ्लो चार्ट से कैसे बन रहा है फ्लो ग्राफ. नोड्स शोज इंस्ट्रक्शन. आफ्टर दैट डबल एजेस है मींस इट इज शोइंग द कंडीशनल स्टेटमेंट. और प्रेडिकेट नोड्स कहते हैं इनको. ये जो फ्लो लाइंस दिखाई दे रही हैं जो बता रही हैं दीज आर द फ्लो ऑफ ग्राफ. इनकी मदद से हम क्या बना रहे हैं, वी आर मेकिंग फ्लो ग्राफ्स. नाउ वी विल फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट पाथ फ्रॉम दिस. इंडिपेंडेंट पाथ प्रोग्राम फ्लो कैसे निकाला जाएगा, मस्ट मूव अलोंग एटलीस्ट वन एज एंड दैट नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर बाय द प्रीवियस पाथ. The basic part defined
प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट नोड टिल द एंड नोड। हाउ मेनी टाइम्स ऐसा हो रहा है? तो स्टार्ट नोड इज 0 और एंड नोड इज 11। तो 0 1 11 में आए एक पाथ, 0 1 2 3 6 7 9 10 and 1 and 11 is second path, 0 1 2 3 6 8 में आ गए, 9 10 and 1 and 11 is third path, 0 1 2 3 4 5 10 and 1 is the fourth path। इतने पाथ बन गए, यहाँ पे 4 पाथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 0 1 2 3 6 9 10 11। यहाँ पे देखा था आपने 0 1 2 3 6 8 9 11 8 9 10 1 11। तो हम कितने इंडिपेंडेंट पाथ है वो निकाल लेंगे। हम इसे कर क्यों रहे हैं? ताकि हम टेस्ट प्लान कर सकें कि कितने पाथ हैं जो हमें टेस्ट करने हैं। आफ्टर दैट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज्ड टू इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। It is a quantitative measure of the number of linearity independent paths through the program source code। कितने नंबर ऑफ पाथ है लीनियरी हम निकाल रहे हैं, वो कहलाती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइड क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। कैन बी कंप्यूटेड इन 3 वेज। कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रीजंस, हाउ मेनी रीजंस थे वहाँ पे? 4 रीजंस थे। नाउ हाउ मेनी एजेस थी एंड हाउ मेनी नोड्स थे? कितनी एजेस थी वहाँ? 14 एजेस थी एंड 12 नोड्स थे। ये कितनी है? 0 1 2 0 से स्टार्ट होके 11 तक आ रहे, मीन्स 12 नोड्स हो गए। और एजेस देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गई एक 13 और ये हो गई 14 एजेस हो गई। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 14 एजेस माइनस 12 नोड्स प्लस 2 इज 4। प्रेडिकेट कितने नोड्स हैं? 3 प्लस 1 4। ऑल आर 3, इट मीन्स वी आर डूइंग द राइट थिंग। अब इनको ध्यान में रखते हुए आफ्टर दैट व्हेन वी ड्रॉ अ फ्लो ग्राफ, डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी and then we determine the independent path and then we prepare the test case that will force execution of each path on the basic set। और उसके थ्रू हम प्लान करके टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे कोड के थ्रू भी इसी तरह फ्लो ग्राफ बनाया है। थर्ड स्टेटमेंट से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, ये जो है फंक्शन का पार्ट है और ये भी फंक्शन का पार्ट है। यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या बनाया है? सर्कल बनाया बिकॉज सीक्वेंस में है। फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इन अ सीक्वेंस, फिफ्थ स्टेटमेंट ऑल्सो इन सीक्वेंस। आफ्टर दैट सिक्स स्टेटमेंट में हमने इफ लिखा है, मीन्स यहाँ क्या बनाने वाले हैं हम? इस तरह का प्रेडिकेट नोड बनाने वाले हैं डबल लाइन का, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा है? एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है। इसमें लिखा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 999 देन 7 पे जाना है, मीन्स वैल्यू ट्रू है तो 7 पे चले गए और वैल्यू फॉल्स है तो हम 8 पे चले गए। यहाँ 8 पे आ गए, 7 पे या 8 पे। आफ्टर दैट 8 में फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट है, देन अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक और प्रेडिकेट नोड बना रहे हैं। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन है, x mod 11 इक्वल्स टू 0 है तो गो टू b पे जाना है। 9 पे आए एंड वेर इज गो टू b? 11, यहाँ आना है। तो 9 पे यदि हम आ रहे हैं तो हमें सीधा कहाँ जंप करना है? 11 पे जंप कर जाना है। इफ कंडीशन इज फॉल्स है देन गो टू a। 10th में क्या लिखा है? गो टू a। तो फॉल्स कंडीशन में हम 10th पे आएंगे और गो टू a मतलब 5 पे चले जाएंगे, तो हम यहाँ से 5 पे चले जा रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पे 11 पे आ गए हैं, बी पे जब जंप किए, यहाँ लिखा है इफ अगेन एक प्रेडिकेट नोड बना है और यहाँ लिखा है x mod y इक्वल्स टू 0। इफ कंडीशन इज ट्रू तो हम 12 पे आएंगे जहाँ लिखा है गो टू c। 12 से कहाँ चले जाएंगे? 14 पे। तो यहाँ देखो हम 12 पे आए और गो टू 14 चले गए। 14 के बाद यहाँ क्या लिखा है? गो टू a। a मीन्स 15 में क्या लिखा है? a मतलब 5 पे चले जाए। तो हम क्या हुआ? 12 पे आए, 14 पर आए जहाँ लिखा है गो टू 15 और 15 में क्या लिखा है? गो टू a मीन्स हम 5 पे चले गए। अब यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं 6 में।
जहाँ पे हमने लिखा था कि यदि कंडीशन ट्रू है तो डी में चले जाना है, तो हम डी में चले गए थे 7 पे। डी में जब हम जंप करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 16th पे। तो 7 से हम कहाँ पहुंच गए, 16th पे, और 16th के बाद 17th पे जहाँ लिखा है रिटर्न 0। यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हमने क्या बनाया, सोर्स कोड के थ्रू एक फ्लो ग्राफ बनाया है, जहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो आई थिंक 15 नोड्स हैं एंड 17 एजेस हैं। वहाँ पे यहाँ पे भी वही 4 रीजन बन रहे हैं। एक रीजन ये बन रहा है, दूसरा रीजन ये बन रहा है, एंड तीसरा रीजन ये बन रहा है, और फोर्थ रीजन इज ये बन रहा है। इस तरह से हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, इंडिपेंडेंट पाथ निकालते हैं, वो ग्राफ का एज और नोड का कॉम्बिनेशन करके निकालते हैं, और उसको हिसाब से टेस्ट प्लान करते हैं। नाउ टेस्टिंग ऑफ लूप्स थर्ड होता है। लूप्स में हम बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। या तो लूप के अंदर ही नहीं घुसते क्योंकि पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन स्किप लूप एंटायरली, या सिर्फ वन टाइम लूप चलता है। जो डू वाइल लूप होता है वो वन टाइम भी चलता है कई बार। डू में हमने एंटर किया बट कंडीशन फॉल्स हो गई तो दोबारा हम वहाँ नहीं आए। टू पासेस लूप भी हो सकता है, एंड एम पासेस मीन्स एम तक पास करते करते लूप भी हो सकता है। लूप नेस्टेड लूप भी टेस्ट होते हैं। इनर मोस्ट लूप को पहले टेस्ट करेंगे, देन आउटर मोस्ट लूप टेस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट टेस्टिंग ऑफ कॉन्कैटिनेशन, यानी दो लूप को प्लस करके जोड़कर यदि हम चला रहे हैं तो वैसे भी हम लूप चला टेस्ट करेंगे। एंड जैसे कि हम दो मैट्रिक्स का जब एडिशन कर रहे होते हैं तो वन मैट्रिक्स और टू मैट्रिक्स दोनों में हम क्या कर रहे हैं, नंबर को इनपुट करते समय लूप चलाते हैं इन सीन ए ऑफ आई एंड सीन बी ऑफ आई, दोनों कॉन्कैटिनेशन में साथ साथ चल रहे हैं। या हम दो स्ट्रिंग को जोड़कर कुछ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो दो लूप को जोड़ के तीसरे लूप पे प्लस करके आ रहा है। या कोई अनस्ट्रक्चर्ड लूप चला रहे हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो इफ एल्स से चल रहा है या डू वाइल टू कंटिन्यू चल रहा है। जब तक हम चाहें चलाएं, जब तक हम ना चाहें खत्म कर सकते हैं उसको। आफ्टर दिस वी हैव फिनिश्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग विच इज कोड टेस्टिंग, जिसके अंदर इंटरनली ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाता है। नाउ वी विल सी, now thank you, we will see the next type of testing which is black box testing in the next video. And again we should always remember we are belonging to the SIRTE and SAGE University. Thank you. Till then, goodbye.